Hello everyone. As we know that the world community today is observing International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking. It is observed every year on 26 June. By Resolution 42 by 112 of 7 December 1987, the General Assembly decided to observe 26 June as International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking. So nowadays, that बच्चों में या एडल्ट्स में इस तरह की चीजें बड़ी कॉमनली पाई जा रही हैं। इलिसिट ट्रैफिकिंग बहुत ज्यादा हो रही है। सो उस संदर्भ में मुझे लगा कि कुछ चर्चा करनी चाहिए, कुछ बात करनी चाहिए, कुछ सोसाइटी को अवेयर कराना चाहिए। तो फिर मेरे दिमाग में हमारे एक बड़े ही काबिल दोस्त श्री गिरजेश चंद्र श्रीवास्तव जी का ख्याल आया दिमाग में। देन आई टॉक टू हिम टुडे आफ्टरनून कि सर आप एक छोटा सा सेशन बच्चों के लिए करिए, उनके पेरेंट्स के लिए करिए, सोसाइटी के लिए करिए। सो ही एग्रीड टू दैट एंड टुडे ही इज हियर एज अ गेस्ट, एज एन एक्सपर्ट। ही विल बी टेलिंग अस समथिंग रिलेटेड टू दैट, बट लेट मी हैव दैट अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस मिस्टर गिरजेश चंद्र श्रीवास्तव to you all. He is a consultant psychologist and practicing for more than 2 decades. He started his career as family counselor with Navjyoti Delhi Police Foundation under the able guidance of the first IPS of the country, Dr. Kiran Bedi, and he was appreciated a lot by her. He has worked as HOD Psychology Department in Nirvan Institute of Mental Health and Neurosciences, Lucknow. He even represented the country in 1-month-long residential training program for the rehabilitation practitioners held at Singapore, organized by Colombo Plan for the SAARC countries in the year 2003. Presently, he is a freelancer based at Allahabad. He runs his own psychological guidance and counseling center there. Apart from that, he is also visiting faculty in various hospitals and schools, such as Nirvana Hospital, Lucknow, SDPBC, Mirzapur, St. Xavier Schools, Gonda, Udaya Public School, Faizabad, Saket Girls PG College, Pratapgarh. The list is so long that if I take the name of all the institutions he is associated with, then I think it will take more than half an hour. He is a regular guest speaker on various psychological issues on 92.7 Big FM, very popular channel, you all know that. And during this COVID pandemic in season 1 and 2, means wave 1 and 2, he has been an immense help to the people who were suffering from the psychological issues through telecounseling. His forte is conducting training and workshops. He has conducted workshops on various issues like personality development, life skills, self-management, attitudinal change, teamwork, communication skill, again the list is long, interpersonal relationships, stress management, career counseling, mental health. But the most important, which is even relevant today, is adolescent and teenagers concern. So today I request Mr. Girjesh to throw some light on the day which we are observing. और सबसे पहले तो हम उनका इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे स्वागत करते हैं। गिरजेश जी, आपका हृदय से स्वागत है। नमस्कार अतुल जी, बहुत अच्छा लगा आपको मिलकर। बहुत दिनों बाद वर्चुअली, कोरोना ने मिलने नहीं दिया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। गिरजेश जी, सबसे पहले तो जैसे मेरे लिए तो ये बड़ा कंसर्निंग विषय होता है। सिंस आई एम अ टीचर, आई एम मीटिंग सो मेनी स्टूडेंट्स और काफी उनके साथ प्रॉब्लम्स होती हैं। कई बार हमें दिखाई पड़ता है कि ये बच्चा शायद किसी गलत दिशा में जा रहा है। कैसे उसको काउंसिल करें, कैसे उसको समझाएं, क्योंकि एज अ टीचर हमारी ड्यूटी केवल पढ़ाना तो होता नहीं है, बीच बीच में काउंसलिंग करना भी होता है। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि नशा है क्या?
और एडिक्ट लोग कौन है, क्योंकि हर नशा करने वाले को हम एडिक्ट तो नहीं कह सकते। तो बिल्कुल मैं बिल्कुल। चाहूंगा कि आप इस पे कुछ प्रकाश डालेंगे, नशा है क्या और हम किनको एडिक्ट बोल सकते हैं। सभी को नमस्कार, हमारे सुनने वाले देखने वालों के लिए। तुम जी, आपसे बहुत दिनों बाद आपको देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। आज हम सभी इंटरनेशनल डे ड्रग अब्यूज 26 जून को ऑब्जर्व कर रहे हैं, और हर साल इस डे पर यूएन जनरल असेंबली एक थीम लेके आता है, और इस बार की जो थीम है वो बिल्कुल आपके क्वेश्चन से जुड़ी हुई है। इस बार की थीम है शेयर फैक्ट्स एंड सेफ लाइफ। शेयर फैक्ट्स एंड सेफ लाइफ। सचमुच हमें That's very good फैक्ट्स, that we are sharing the facts today, Girjesh ji then. एक्चुअली दैट्स व्हाई आई एम वेरी हैप्पी कि इस बार की जो थीम से है हम डायरेक्ट जुड़ गए हैं। Right. हम अभी जैसे आपने जो प्रश्न किया वो बहुत ही साधारण सा जनरल सा प्रश्न है, बट सचमुच फैक्चुअल किसी को पता नहीं है कि नशा क्या है। लोग क्या मानते हैं, ये एक चरित्र या व्यक्तित्व की कमी है। भाई आपका चरित्र ठीक नहीं है, आप नशा करते हैं। जबकि हकीकत में देखा जाए जो फैक्ट्स है, ये चरित्र या व्यक्तित्व की कमी नहीं है, ये एक्चुअली एक मानसिक रोग है, और ये बात लोगों को पता नहीं। अब आपने जो प्रश्न पूछा कि कैसे पता करेंगे कि किसको हम एडिक्ट बोले किसको नहीं बोले, तो आज मैं सबसे पहले तो जी मैं आज एक चीज बोलना चाहता हूँ कि यहाँ पर हम आप दो लोग बात कर रहे हैं, तो आज हम बहुत सी टेक्निकल बातें ना करके एक लेमैन की बात करेंगे, जिससे घर में पेरेंट्स, वो बच्चों को पढ़ाने वाले टीचर्स, उनके साथ बिल्कुल जुड़े बिल्कुल हुए स्टेक होल्डर सब्जेक्ट, बिल्कुल हम लोग क्योंकि समझ सकें उसको। राइट। एक्चुअली हाँ, मेरा इसी ओर ज्यादा ध्यान होगा कि मैं एक बहुत साधारण शब्दों में लोगों को बता पाऊँ। तो सबसे पहले तो ये मान लीजिए कि नशा एक रोग है। जब तक हम इसको लत, आदत इस कैटेगरी में रखेंगे, हम सभी स्टेक होल्डर्स परेशान हैं। राइट? राइट। अब स्टेक होल्डर्स की बात कर लें कि सबसे ज्यादा नशा करने वालों से कौन-कौन। अच्छा, इसी में मैं जोड़ दूं इसको, अगर हम कहें कि एक पारिवारिक समस्या है, तब भी गलत नहीं होगा। क्योंकि जैसे आपको बुखार हुआ, जुकाम हुआ, तो आप सबसे पहले खुद बहुत परेशान होते हैं, या हॉस्पिटल की दवाएं ले ली या जरूरतें पूरी हो गई आपकी। बट जो नशा रोग में जाते हैं, उनके साथ उनका पूरा पूरा परिवार उस रोग से सफर करता है। इसलिए एक पारिवारिक रोग है। बिल्कुल ठीक। सही। अब अब आपका प्रश्न जो है, मैं बहुत ही क्लियर और स्पष्ट बताता हूँ किसको अपन। अब डॉक्टर साहब, कैप्टन साहब, इंजीनियर साहब या कोई भी व्यक्ति सोशल ड्रिंकिंग करते हैं, डेली हो सकता है लेते हो। अगर मैं अल्कोहल की बात करूँ, राइट। कोई भी, तो क्या अच्छा, एक नया टर्म आया है सोशल ड्रिंकिंग। उसने भी एक पर्दा दिया हम लोगों को कि हम कंज्यूम कर सकते हैं, ले सकते हैं। या हमारे टीनेज की बात आप कर रहे हैं, बियर इज नॉट अल्कोहल ड्रिंक, बियर इज नॉट एन अल्कोहल ड्रिंक, ये भी मिथ एक है। राइट? जबकि अगर थोड़ी सी टेक्निकल बात करें, तो 1 बॉटल बियर इज इक्वल टू 1 पैग ऑफ व्हिस्की। राइट। और लोग मस्ती और मजे में बोलते हैं कि यार 2-3 बॉटल से तो मेरा कुछ होता ही नहीं। तो इफ यू हैव कंज्यूम्ड 2-3 bottles of beer, it means you have consumed 3 to 4 pints. So these are some facts which one must know. Now, चार स्टेप्स होते हैं: यूज, एब्यूज, डिपेंडेंस एंड डिजीज। राइट। किसी भी प्रकार के मादक पदार्थ का सबसे पहले यूज होता है। राइट? अब जैसे आप डॉक्टर के पास गए, आपको बहुत कोरोना के कारण या किसी और कारण से, व्यक्तित्व के कारण आपको नींद आने में थोड़ी दिक्कत या एक छोटी सी समस्या है। अब आप डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने आपको कोई दवा लिखी, और डॉक्टर ने लिखी एक गोली रात में 10 दिन, ये यूज हो गया। अब राइट। 10 दिन बाद आपने डॉक्टर को दिखाया नहीं, और आपको लगा यार 11वें दिन यार वो गोली तो बड़ी अच्छी थी, और आप बिना डॉक्टर के अगेन रिकमेंडेशन के वो गोली ले आए और नेक्स्ट 15 डेज खा रहे हैं। दैट इज यूज कन्वर्ट इनटू एब्यूज। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा। राइट। यूज और, राइट। राइट। बिल्कुल। या डॉक्टर ने कहा कि एक गोली शाम को ले लीजिएगा 0.25 mg की, और आपने क्या किया, उसको अपने मन से 0.50 कर लिया, ये भी एब्यूज है।
राइट। डॉक्टर ने दिन में एक बार लिखा है 24 घंटे में, आपने 24 घंटे में अपने आप 2 बार कर लिया, ये भी अब्यूज है। तो जब यूज के बाद आप उसको अनायासी बिना जरूरत कोई भी मादक पदार्थ दोबारा उपयोग करते हैं, तो ये भी उसकी कैटेगरी में आ जाता है। अब आपने मान लीजिए कुछ दिन तो ले ली, और उसके बाद जब आप नहीं लेना चाहते हो, तो आपकी बॉडी डिमांड करती है, आपका मन डिमांड करता है कि उसके बगैर अब नहीं रह सकते हैं। ये तीसरी कैटेगरी हो गई जिसको हम बोलते हैं निर्भरता, डिपेंडेंस। अब इसके बगैर हमें तमाम तरीके के, जिसको हम टेक्निकल भाषा में बोलते हैं विड्रॉल, वो विड्रॉल आएंगे और हम शारीरिक मानसिक रूप से बेचैन हो जाएंगे और हम इसको दोबारा लेने लगते हैं। ये हो जाती है हमारी निर्भरता कि अब हम इसके बगैर नहीं रह सकते। और राइट। फिर एक ऐसी स्थिति आती है जहां पर आपको सुबह उठने के बाद से और रात में सोने तक सिर्फ और सिर्फ एक ख्याल होता है कि मुझे अपना नेक्स्ट डोज कैसे मिले। ये वो होती है बीमारी की स्थिति, जहाँ पर शारीरिक, पारिवारिक, मानसिक हर तरीके से आप उस में तो क्षय परिवार कर में जितने भी सदस्य जुड़े होते हैं, सबके लिए परेशानी का सबब होता है। बिल्कुल, राइट। बिल्कुल, बिल्कुल। अब इस कंडीशन को हम बोलते हैं रोग। अब आपकी उस बात का भी सीधा जवाब दे दूं कि कौन एडिक्ट है, कौन नहीं। तो मैं बहुत साधारण तरीके से बता रहा हूँ, एवरीवन कैन अंडरस्टैंड। ये 5 उँगलियाँ देख लीजिए। कोई भी किसी भी प्रकार का नशा कर रहा है, किसी भी प्रकार का, अगर वो अपना 5 तरीके का नुकसान करता है, तो वो नशेबाज कहलाएगा। जैसे शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक और पारिवारिक। ये 5 नुकसान कोई नशा करने के कारण कर रहा है, तो वो एडिक्ट कहलाएगा। अब जैसे मैंने भी एग्जांपल दिया कि कोई भी शालीन व्यक्ति, कोई भी डॉक्टर, इंजीनियर, कैप्टन, कोई भी जो कहते हैं कि हम शाम को एक ड्रिंक ले लेते हैं, लेकिन हो सकता है अभी वो अपना पांचों नुकसान नहीं कर रहे हैं। जो आपने पूछा ना कि वो क्यों नहीं एडिक्ट, तो हो सकता है वो पांचों नुकसान नहीं कर रहे हैं। आर्थिक रूप से वो अभी मजबूत है, शारीरिक रूप से तो जो है उनका नुकसान हो ही रहा है। वो किसी का 1 हफ्ते में होगा, किसी का 1 महीने में होगा, किसी का 1 साल में होगा। बिल्कुल। राइट। लेकिन अभी वो मानसिक, आर्थिक, सामाजिक और पारिवारिक रूप से नुकसान नहीं उठा रहे हैं, इसलिए वो एडिक्ट की कैटेगरी में नहीं है। नहीं आ रहा, बिल्कुल सही। और और जो ये पांचों नुकसान जितना उठा लेगा उतना क्रॉनिक होता चला जाएगा। राइट, राइट। राइट। बहुत अच्छे तरीके से आपने समझाया कि किसको हम एडिक्ट बोल सकते हैं, किसको एडिक्ट नहीं बोल और सकते। को नहीं बोल सकते हैं, तो बिल्कुल इवन जितना इवन नुकसान होगा उतना। तो इवन अगर हम जी। इसमें ये भी बोले कि कोई व्यक्ति ज्यादा चाय पी रहा है और उसके बॉडी ऑर्गन्स में कहीं ना कहीं अफेक्ट हो रहे हैं, मतलब अगर जरूरत से हम्म। ज्यादा पी रहा है, तो वो भी नशा है, वो भी एडिक्शन है। हाँ, यहाँ मैं एक क्लियर कर दूं कि मैंने पांचों चीजों की बात की। तो क्या चाय पीने से एक व्यक्ति का आर्थिक नुकसान कितना होगा, ये क्वेश्चन मार्क। क्या ओके। चाय पीने के कारण आपको घर वाले घर से निकाल रहे हैं, क्वेश्चन मार्क। मतलब क्या सामाजिक समाज कोई वाले नुकसान नहीं हाँ, है, पारिवारिक कोई नुकसान परिवार नहीं है। परिवार का नुकसान नहीं है, सोशल नुकसान नहीं है, आर्थिक नुकसान नहीं है, राइट, मानसिक नुकसान भी नहीं है। यार नहीं मिलेगी 1 घंटे तो कोई बात नहीं, 1 घंटे बाद पी लेंगे, ओके। घर जाके पी लेंगे। ठीक है। राइट। इसलिए चाय को हम नशे की कैटेगरी में नहीं रखते। नहीं डालते, बिल्कुल। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि कई बार लोग बोलते हैं ना, हम चाय को लेकर के एडिक्टेड हो गए। हाँ, सो बिल्कुल, बिल्कुल। सो वो वो एडिक्शन शब्द नहीं है, है। वो एक आदत है। हाँ, उसको उसके आप लिए कोई आदत कह सकते सामाजिक हैं। पारिवारिक नुकसान नहीं हो रहा और बहुत विथड्रॉल नहीं है उसके। अगर आप चाय छोड़ेंगे तो हो सकता है एक 3 दिन, 4 दिन, 1 हफ्ते के अंदर आपको चाय की जरूरत ना हो। है, आदत छूट जाएगी। बिल्कुल सही। एक्चुअली, ओके। एक्चुअली। मेरा दूसरा क्वेश्चन इस पे आ रहा है कि यूज और एक्सेसिव यूज, जैसे हाँ, अभी हाँ। आपने बोला कि एडिक्शन कहाँ पे होगा जा करके, तो उसी तरह से जी, जी। यूज और एक्सेसिव यूज को कैसे डिफाइन करेंगे? ये इस तरीके से समझ सकते हैं क्योंकि कई बार हमारा मिसकंसेप्शन ये होता है कि कितना लेने पे हम एडिक्ट हों। क्या कोई डेली पी रहा है उसको एडिक्ट बोलेंगे, या मैं तो महीने में खाली 1 दिन लेता हूँ जिस दिन तनख्वाह मिलती है, सैलरी मिलती है। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। या या मैं पार्टी तो या खाली या हो पार्टीज में ले लिया, बर्थडेज में हाँ, ले लिया। हाँ, या तो मेरा सेट है, मैं वीकेंड में ही खाली लेता हूँ, राइट, या मैं राइट। शादी ब्याह में लेता हूँ, राइट। तो यहाँ पर मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ कि क्वांटिटी, फ्रीक्वेंसी नहीं डिसाइड करेगा कि आप एडिक्ट। ओके। कोई एक व्यक्ति हो सकता है कि जो खाली एक दिन ही, एक 2 बार ही नशा लेकर अपने सारे नुकसान कर ले।
ओके। जो मैंने पांचों राइट। गिनाए। वो महीने में खाली सैलरी वाले दिन ही लेता है, लेकिन उसी दिन ही उसको जो है अटैक आ जाता है, उसी दिन ही उसकी जेब कट जाती है, पैसे का नुकसान हो गया, ठीक। और राइट। उसी दिन ही उसका किसी से झगड़ा हो जाता है, उसी दिन ही बीवी ने कहा कि इस बार तुम फिर पी के आए हो, पैसा नहीं ले आए, उससे झगड़ा हो जाता है। तो यानी आप पीते तो एक ही 2 दिन हो, लेकिन उसी और दिन आप अपना पाँचों नुकसान कर लेते हो। बिल्कुल, और मोहल्ले वालों को भी पता चलता है कि आज इसने जो है तो अरे भाई भाई सामाजिक नुकसान मैं भी हो किसी गया। हाँ, हाँ, मान लीजिए मैं पता नहीं इस प्लेटफ़ॉर्म पे वर्चुअल पे मैं बहुत लाइव आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ, बोलना चाहिए। मैं गिरजेश हूँ, हम्म। राइट? आप मुझे गिरजेश कहते हैं। अब आपको पता चला मैं बहुत नशा करता हूँ, नुकसान कर रहा हूँ, परेशान कर रहा हूँ। कुछ दिन बाद आप बोलने लगेंगे ये गिरजेशवा है क्या? हाँ। राइट, राइट, और राइट। उसके आफ्टर दैट आफ्टर सम टाइम इफ इट इज़ गेटिंग मोर इंटेंसिव देन आप क्या बोलेंगे कि अरे वो देखो पियक्कड़ है यार, राइट। शराबी है। So हाँ, means you या are ठीक है losing चलो you're losing your social सोशल recognition. एक्चुअली एक्चुअली Right. एक्चुअली तो ये क्वांटिटी जो एक्सेसिव की बात करें, क्वांटिटी और फ्रीक्वेंसी नहीं डिसाइड करेगी कि आप एडिक्ट हैं, रादर ये डिसाइड करेगा कि आपका यूज कितनी जल्दी अब्यूज और डिपेंडेंस में बदला। Right. 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 जी ठीक है। जी इसके आगे चलते हैं। आगे ये है कि कौन कौन से पदार्थ, जैसे अभी मैंने आपसे चाय के बारे में पूछा कि क्या इसका एडिक्शन हो सकता है कि नहीं, तो कौन कौन से ऐसे पदार्थ हैं जिनको हम बोल सकते हैं कि अगर हम इनका यूज करेंगे तो शायद हम, जैसे आपने बोला पियक्कड़, नशेड़ी, लाइक जी जी दैट, जी जी ये जी टर्मिनोलॉजी जी जी। हमारे लिए फिर यूज की जाएगी। हाँ, जैसा कि मैंने आज से प्रॉमिस किया कि आज मैं सारी बातें लेमैन के लिए करूंगा, बहुत टेक्निकल ना नहीं, होके। बिल्कुल तो मैं लेमैन के लिए ही शो है, क्योंकि हमारा शो बच्चे देखेंगे, उनके पेरेंट्स देखेंगे, शायद एक्चुअली उनकी एक्सेसिबिलिटी टेक्निकल हाँ, टर्मिनोलॉजीज को तो लेकर नहीं है। तो हाँ, तो अगर आप 12th की ही बुक में चले जाएँगे और इस तरीके के केमिकल्स के बारे में पढ़ेंगे तो बहुत ही टेक्निकल आपको लॉन्ग लिस्ट मिल जाएगी। बट यहाँ मैं आपको बता देता हूँ कुछ कॉमनली जो यूज़ की जा रहे हैं बच्चों में भी, सोसाइटी में भी, जैसे बियर हो गई, राइट। शराब हो गई, हेरोइन, कोकीन, भांग, चरस, गांजा, अफीम, दर्द निवारक गोलियाँ, राइट? अवसादक दवाएँ, ये सब बहुत कॉमनली आजकल यूज़ हो रही हैं। स्कूल्स पे विशेष मैं आगाह कर देना चाहता हूँ, स्कूल्स में पिछले कुछ वर्षों में एक विशेष तरीके के नशे का उपयोग बच्चों में देखा गया है, स्टडीज़ पाई गई हैं, वो डाइल्यूटर का बहुत यूज़ करते हैं, जो ओके। व्हाइटनर डाइल्यूटर होता है, हाँ, राइट, राइट, उसको राइट। इसमें हाँ, इस तरीके का एक कुछ तो ये जो मैंने बताया बहुत कॉमनली एक मिस जो इस बार का हमारा एजेंडा है 26 जून का कि फैक्ट्स बताना कि बियर अल्कोहल नहीं है, ये बच्चों में बहुत ज़बरदस्त फैला हुआ है ये उनको और बताना सोशली चाहिए कि बेटा बियर में भी कुछ परसेंटेज बियर अल्कोहल भी का एक है। अल्कोहलिक बेवरेज है वो, अल्कोहलिक ठीक है? बेवरेज। और उसमें उसमें लिखा रहता है कि 7.5% अल्कोहल राइट, या राइट। 4.5% ये उसके लिए लिखा गया है जो आप एक ब्रांड या किसी बढ़िया से फूड वाली कंपनी से प्रिस्क्राइब करने के ले रहे हो। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो लोकल भी मैन्युफैक्चर करते हैं। उसमें राइट, वो 30% 40% अल्कोहल होती है। तो आप तो जबरदस्त अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हैं। तो राइट, ये एक राइट। मिस बच्चों में ज़रूर हटाना चाहिए। और यहीं पर एक बात मैं कोट कर दूँ कि पेरेंट्स की अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये बच्चे 8th 9th से शुरू होते हैं और 12th तक तो वो पता ही नहीं लगने देते घर में कि वो किसी तरीके के एडिक्शन राइट, राइट। इसलिए हमें इसी से हमें प बिल्कुल इसी से रिलेटेड मेरा दूसरा क्वेश्चन भी है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी है जी, कि जी, जैसे जी। पहले, मतलब मैं यहाँ पे कोई इकोनॉमिक बैकग्राउंड पे क्लासिफिकेशन नहीं कर रहा, लेकिन पहले ये देखा गया था कि जो लोअर स्ट्रेटा के लोग थे, शायद वो एडिक्टेड ज्यादा होते थे। लेकिन अब ये बैरियर तो हट गया है। बड़े-बड़े स्कूलों के बच्चों को देखा गया है दैट दे आर यूजिंग दिस सब्सटेंस। तो मुख्य कारण होते देखिए क्या है? क्यों लोग इस दिशा की ओर बढ़ते हैं? ऐसा तो दोनों नहीं कि दोनों उन्हें चीज़ों पता नहीं है कि ये चीज खराब है, लेकिन फिर भी उसकी तरफ जा रहे हैं। देखिए मैं मोटे-मोटे कारणों की बात तो आपको बताऊँगा लेकिन अभी जो आपने बताया कि ऐसा पहले इकोनॉमिक स्टेटस की बात जो कर रहे हैं कि अब अगर देखा जाए तो पिछले करीब 20-25 वर्षों में एक तरीके से ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री हो गई है बिज़नेस वालों के लिए। हुँ। इल्लीगल राइट, राइट। इल्लीगल राइट? अब इल्लीगल को अब अल्कोहल हमारा जो है हमें राशन की शुरुआत के साथ राशन किया गया उसके बाद ये ओपनली बिक रही है।
राइट? तो हम्म। कहने कहने का मतलब ये है कि अ, आपका जो ये बिजनेस इंडस्ट्री में चेंज हो गया, एक पैसे की चाहत, तो लोगों ने इसको बहुत पॉपुलराइज किया, मार्केट किया। चाहे आप टीवी में एडवर्टाइजमेंट देख ली, मीडिया देख लीजिए, भाई केवल एक लाइन लिख देते हैं, धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक, या अल्कोहलिक बेवरेज आर नॉट गुड फॉर द हेल्थ। ठीक राइट। है? शायद किसी की निगाह भी नहीं पड़े। खैर, ये इस मुद्दे पर हम लोगों को अभी चर्चा नहीं करनी है कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, कैसे होना चाहिए, वो हम किसी और प्लेटफ़ॉर्म पे कर सकते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि क्या कारण है जो बच्चे या कोई भी व्यक्ति फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम और नशे में चला जाता है। सबसे पहले तो छड़ी का आनंद प्राप्त करने के लिए, राइट। राइट? हाँ, क्योंकि होता क्या है कि ये जितने भी इस तरीके के एडिक्टिव केमिकल्स हैं, वो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में डायरेक्ट जाके अटैक करते हैं, और ओके। हमारी थोड़ी-सी सोचने समझने की पावर कम होती है, तो हम सो कॉल्ड की टेंशन में है, तनाव में है, तो हमें उससे रिलैक्स हो जाते हैं। रिलैक्स तो फील वो छड़ी करते का, हैं, राइट। चलो थोड़ा-सा हाँ, आनंद जब लेते हैं, रिलैक्स करते हैं। हाँ, राइट। एक्चुअली, बट ये क्लियर कट बोल दूँ, ये एक मिथ है, ऐसा हुँ, होता नहीं। नहीं, ये हम जो मानसिक रूप से सोच के इसका कंजम्पशन करते हैं, वो हमें मोटिवेट करता है ऐसा सोचने के लिए, ऐसे फीलिंग आने के लिए। थोड़ा बायोलॉजिकल तो है ही मतलब है, हम क्योंकि अपने सेंट्रल नर्वस कंज़म्पशन सिस्टम को, मतलब मैं आपकी बात को बोलूँ कि हम में। अपने कंज़म्पशन को ऑथेंटिकेट कर रहे हैं कि ये बुरा नहीं है, थोड़ा-सा बिल्कुल, रिलैक्स करने के लिए, लेकिन वो हाँ, आप गलत है। मान के ले आप ये मान के चल रहे हो कि अगर मैं 2 सिगरेट पी लूँगा तो 2 घंटे और पढ़ पाऊँगा रात में। हुँ, तो हुँ, आप ये मैसेज तो दे दिया है ना अपने माइंड को। माइंड को अब दे आपको अब आप वो सिगरेट अपने सिम्पटम के कारण 2 घंटे नहीं पढ़ा रही है। हुँ, सिगरेट पीने के बाद आपने जो सोचा है मैं 2 घंटे पढ़ लूँगा, वो पावर आपको 2 घंटे पढ़ा रही राइट, राइट, राइट। और ये मिसकंसेप्शन है। होता है ये बच्चों को कि सिगरेट पढ़ा रही है। राइट। हाँ, वो तो खाली सिगरेट क्यों, लोग चाय, कॉफ़ी किसी भी चीज़ के लिए ये करते हैं। उदाहरण तो ये उदाहरण तो गिरजेश जी आपने बहुत बढ़िया दिया है, ये मैं ज़रूर अपनी क्लास में आगे कोट करूँगा कि बेटा वो हाँ, सिगरेट एक्चुअली नहीं पढ़ा रही, वो आपका डिटरमिनेशन है कि वो आप जो 2 सोच है, घंटे आप जगोगे। मैं मैं इसको और स्पष्ट कर दूँ। आपको कभी सुबह कहीं ट्रेन पकड़नी होती है, आपको 4 बजे की ट्रेन है, आप बिल्कुल, अलार्म लगाते हो, लेकिन अलार्म से पहले उठ जाते हो। अलार्म से पहले उठ जाते हैं, बिल्कुल सही बात है। क्यों? क्यों? क्योंकि आपने माइंड में फीड कर दिया मुझे सुबह उठना है। मुझे सुबह उठना राइट, राइट, औ राइट। और और एक बार ज़रा इसको और चेक कभी करके देखिएगा आप, मैं बहुत हाँ, जनरल बातें बता रहा हूँ कि आप अलार्म लगाइए 4 बजे का, और केवल एक थॉट और दे दीजिए, चलो ट्रेन छूट जाएगी तो बस से चला जाऊँगा। तो पक्का तो आप ऐसा गारंटी वाला, यस, फिर आपको ट्रेन नहीं मिलेगी, आपको बस से ही जाना पड़ेगा। राइट, 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 तो ये हमारे मन की और माइंड की पावर है। राइट, राइट। दूसरा, कुछ पारिवारिक परिस्थितियाँ होती हैं जो कारण बन जाती हैं। यहाँ हुँ, भी वही मिस होता है भाई, ये तो व्यक्तित्व की बात है कि हमारे परिवार में ऐसी स्थितियाँ आ गई, पैसे की कमी थी और ऐसा हो गया, फिर घर पे फादर लेते थे, माहौल ऐसा था, मेरा घर शराब की दुकान के पास, कुछ भी। तो एक राइट, पारिवारिक परिस्थितियाँ, या ब्रोकन फैमिली थी, मम्मी-पापा अलग रहते थे, झगड़े बहुत होते थे, परिवार बड़ा था, इकोनॉमिक स्टेटस जो आपने बताया, तो एक पारिवारिक परिस्थितियाँ भी कभी-कभी कारण बन जाती हैं नशे की ओर जाने की। अकेलापन, अकेलापन दूर करने के लिए लोग सोचते हैं इससे बढ़िया साथी कोई नहीं, राइट? राइट। तो वो भी होता है। फैशन, हुँ, ये स्पेशली टीनेजर्स। लेट्स हैव अ ड्रिंक। हाँ, अगर अब मेरे बर्थडे, तुम मेरे पक्के दोस्त हो, मेरे बर्थडे में यार तुम एक बियर नहीं लोगे यार, तुम मेरे पक्के दोस्त नहीं हो। जाओ यार तुम मिल्क लो, तुम क्या बियर पियोगे, ये मर्दों की चीज़। राइट, कुछ ऐसी सिचुएशंस बनती हैं, जहाँ पर हम आउट ऑफ फैशन कि हम इंफीरियर माने जाएँगे इफ आई एम नॉट टेकिंग दैट ग्लास। राइट, राइट, राइट। इफ आई एम, तो एक ये हो जाता है, दोस्तों के प्रभाव में आके बच्चे शुरू कर देते हैं, कि यार मैं कहीं ऑड वन आउट ना हो जाऊँ, हुँ, 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 हुँ। राइट? ये कारण बिल्कुल, बन बिल्कुल। जाता है। जीवन की समस्याओं से पलायन करने के लिए, अब काम बहुत ज़्यादा हो गया, फाइल सबमिट करनी है, हो पा नहीं रहा है, कैसे रात में नींद आएगी? चलो थोड़ा-सा सो ले लेते हैं, सोते हैं, सुबह देखा जाएगा, राइट? तो लाइक दिस। तीसरा, और आसानी से उपलब्धता एक बहुत बड़ा कारण, हुँ, आसानी से उपलब्धता। आपको हो सकता है कोरोना में बहुत सी चीज़ों के लिए इधर-उधर भागना पड़ा हो, लेकिन इसकी उपलब्धता आसानी से और इसकी जल्दी हो चुकी उपलब्धता थी। थी, बिल्कुल सही बात है। हाँ, थोड़ा-सा मज़ाक लग रहा है, लेकिन सीरियसली ये है कि बहुत ईज़िली अवेलेबल है। चाहे वो यस, बच्चे हों, यस। चाहे वो किसी को भी जो है, अभी तो चलिए ठीक है कि आपको कोई और सामान लेना हो तो बहुत खोजना पड़ेगा।
लेकिन आपको अगर एक बोतल बियर की चाहिए तो आपको मिल जाएगी, आपको अल्कोहल हर जगह अवेलेबल है। मैं तो राइट। यहाँ तक कह रहा हूँ पिछले 25 सालों में जो परिवर्तन आया है कि जो हैजार्डियस ड्रग है, ओपियाइड ड्रग जिसको हम स्मैक बोलते हैं, हेरोइन बोलते हैं, ये छोटे-छोटे गाँवों तक पहुँच गई है। पान की दुकान में आपको मिल जाएगी। माय गॉड। तो आसानी से उपलब्धता जो है, ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है जिस पे हमें हमेशा चर्चा करनी चाहिए और इस उपलब्धता को एक हमें अपने जो हमारी पॉलिसिंग है या जो हमारे तो स्टेक होल्डर्स हैं उनको देना चाहिए। बिल्कुल उम्मीद करते हैं और कि हमारा शो जो है अथॉरिटीज तक भी पहुंचे, जिससे कि उनको ये जी, पता चले, क्योंकि आप तो इस तरह की सिचुएशन को फेस करते हैं, आपके पास बच्चे आते हैं, तो आपको पता चल रहा जी, है कि जी, यहाँ यहाँ पे उपलब्धता है। तो उम्मीद करते हैं हमारे जी। शो के बाद अथॉरिटीज की नजर में ये पहुंचे और वो हाँ, इन चीजों को हाँ। ध्यान दे। एटलीस्ट हमारी जो नहीं यंग जनरेशन है, जो हम 3 Ds और 5 Ds की बात करते हैं, डेमोग्राफी, जी, 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 जी। डेमोक्रेसी, तो डेमोग्राफी पे अगर निगेटिव असर पड़ेगा तो हम कैसे वो ग्रोथ अचीव कर पाएंगे। वही है कि काम काम तो हो रहा है, सारे स्टेक होल्डर्स अपने स्तर से काम कर रहे हैं, लेकिन मेरा जो इतना लगभग 25 वर्षों का अनुभव है, मैं अभी भी इतने अवेयरनेस के बाद भी कहना चाहूँगा कि अभी बहुत आवश्यकता है अवेयरनेस, बहुत राइट। ज़्यादा आवश्यकता है। राइट। थैंक यू सो मच। आगे चलते हैं। एक और चलते चलते मैं आपसे ये जरूर जानना चाहूंगा कि कैसे बच्चों को या एडल्ट्स भी, आजकल तो इवन जेंडर डिस्क्रिमिनेशन भी यहाँ पे नहीं रह गया है, जी, तो जी, कैसे जी, हम जी। उनको इस, एक तरीके से गलत चीज ही है, तो कैसे उनको हम इनसे बचाएं। तो आप उससे रिलेटेड कुछ अगर सुझाव दें, सलाह दें कि कैसे हम बचें। अब जिन लोगों तक हमारा ये शो पहुँचेगा, अगर वो हमारी पहली लाइन याद करेंगे कि ये एक रोग, तो सबसे पहले तो ये मानना होगा कि जो उनका बच्चा है, जो उनका क्लाइंट है, जो उनका रिलेटिव ही है, जो खुद नशा करने वाला है, वो एक रोग का शिकार है, जिसको वो एक क्रॉनिक मानसिक रोग है। राइट। दूसरा, मन में नशे की लत छोड़ने की ठानिए, नंबर 1 राइट। ठानना बहुत ज़रूरी है, राइट? आपको मैं यहीं पर एक एग्ज़ाम्पल दूँ। लोग वैष्णो देवी के दर्शन करने जाते हैं, 7 दिन, 8 दिन बिल्कुल नहीं पीते। बिल्कुल, बिल्कुल। और ऐसा क्या होता है, ऐसी कौन-सी मानसिक निर्भरता होती है कि आप वापस लौट के आए हैं और जम्मू स्टेशन पे ही पी लिया? बिल्कुल, इवन ये चीज़ तो नवरात्रों के दौरान भी देखी जाती है कि नहीं, 7 दिन, 8 दिन तो अब छुएँगे नहीं। रो रोज़े रखते हैं लोग 29 दिन का, नहीं पीते हैं। राइट, 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 लेकिन राइट, लेकिन ईद वाले दिन सबसे पहले उनकी बॉटल का ढक्कन खुल जाता है। इसका राइट, मतलब सबसे ज़्यादा ये मानसिक निर्भरता है। तो सबसे राइट, पहले मन में छोड़ने की ठानिए, चिकित्सक की सलाह लीजिए इमीडिएटली अगर आपको लगता है कि आप पाँचों नुकसान कर रहे हैं तो। नशा मुक्ति केंद्रों और पुनर्वास केंद्र बहुत सरकार द्वारा, गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा चलाए जा रहे हैं, वहाँ संपर्क करिए। एक दोस्तों, रिश्तेदारों और परिवार के साथ ज़्यादा समय बिताइए, अकेले मत रहिए अगर आप इस डिज़ीज़ को कैरी कर रहे हैं तो। राइट, मनोवैज्ञानिक सलाह लें। परिवार भी नशा रोग की जागरूकता के बारे में उतनी ही एफर्ट करे, जितना उससे जुड़ा हुआ व्यक्ति, कि राइट। कैसे ये ठीक होगा। राइट? बहुत बढ़िया। रोगी को जो आपका रोगी है, जो आपका नशा करने वाला व्यक्ति है, उसको लगातार प्रेरित करना पड़ेगा। लगातार करते रहिए, नहीं ठीक है, हो जाएगा, आत्मविश्वास उसका बढ़ाते रहिए। वो छोड़ेगा, फिर लेगा, फिर छोड़ेगा, फिर लेगा, लेकिन आप उसको प्रेरित करते रहिए कि नहीं ये रोग है और ठीक हो जाएगा। राइट, तनाव और दबाव की परिस्थितियों से उस व्यक्ति को बचा के रखें। जितना कम इससे हम इसको तनाव और दबाव कह रहे हैं, लेकिन अब आप जैसा समझ जाने की आज मैं हम लोग कोशिश कर रहे हैं, बहानों से बचाइए उसको। राइट, उसको बहानों से बचाइए। हाँ, कि भैया मत जा भाई, हम पूरा परिवार नहीं जाएँगे तिलक में, हुँ, शादी में, हुँ, हुँ, तेरे कारण। लेकिन तुम जाओगे तो पी लोगे इसलिए नहीं जाएँगे। राइट। बहानों से बचाइए, राइट? योग और व्यायाम करवाइए, बढ़िया से एक जीवन स्टाइल, दैनिक दिनचर्या 24 घंटे के लिए आप 24 घंटे अपना आपका चेकआउट करें प्रोग्राम। तो इन सब छोटे-छोटे उपायों के साथ मानसिक रोग विशेषज्ञ की सलाह ज़रूर लें। इन अ, तरीके से हम बच सकते हैं। तो आप इन समस्याओं से उबर सकते हैं। आपने बहुत अच्छी बात कही कि ये बीमारी है, इससे नफ़रत करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उस व्यक्ति को बिल्कुल नहीं, सपोर्ट करने की ज़रूरत है। उसको हमें बार-बार ये बिल्कुल। भी नहीं बोलना है कि अरे यार तुम नशेबाज हो, ये हो, क्योंकि वो बीमार है। जैसे आपने कहा कि वो अगर वो चौथी स्टेज पे पहुँच गया तो वो बीमार है। बीमार है तो जैसे हम बिल्कुल, बीमार का ट्रीट करते हैं कि नहीं, उसको फ़ीवर है, उसको हम कंबल ओढ़ाएँ, उसको हम
आइस पैक रखें, हम उसके टेम्परेचर को नीचे लें। तो इसी तरह से हमें एफर्ट्स करने हैं। बिल्कुल। एफर्ट्स में जैसे आपने बताया, टॉक टू साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर, टॉक टू बिल्कुल, डॉक्टर, बिल्कुल। टॉक टू द रिहैबिलिटेशन सेंटर पीपल, राइट। परिवार वालों को खुद को जागरूक होना पड़ेगा। जैसे खुद आज को हम आप जागरूक समझ पा रहे हैं इस शो के माध्यम से कि ये क्या है, वैसा उनको समझना पड़ेगा तभी। अब मान लीजिए कोई एक व्यक्ति इलाज के बाद ठीक होके गया और अपने काम पे गया, मोटरसाइकिल चला के आ रहा है, उसकी आंखें लाल हो गई हैं। अब राइट। आते ही वाइफ ने बोल दिया, आज पी के आए हो क्या? तो फिर इसका मतलब परिवार नहीं अवेयर है, नहीं, और जबकि वो परिवार नहीं पी अवेयर के नहीं आया है है और शायद उसको उसकी तरफ धकेल भी रहा है। एक्चुअली। तो इस राइट, तरीके के सरकाज़्म हमेशा हेल्प करें उसकी, राइट, जैसे राइट। एक रोगी की हेल्प होती है। बहुत बढ़िया गिरजेश जी, आपके साथ सेशन करके, इनफैक्ट मैं बताऊं, मुझे इतनी जानकारी नहीं थी। मतलब आपने बड़ी सरल शब्दों में इन सारे चीजों को एक्सप्लेन किया है। आई एम इंडेटेड टू यू एंड होपफुली द व्यूअर्स विल आल्सो एग्री विद माय ओपिनियन कि आपने बड़े आसान शब्दों में इन सारी बातों को रखा है। और हम पुनः किसी विषय पर मनोज्ञान से रिलेटेड हुआ, करियर काउंसलिंग से रिलेटेड हुआ, मैंने देखा आपकी प्रोफाइल में आपने पता नहीं किस सब्जेक्ट पे सेमिनार नहीं किए हैं, वर्कशॉप नहीं किए हैं। मुझे तो लगता ही नहीं कुछ जी, बचा जी, जी। नहीं है। सो होपफुली जहाँ फॉर द नेक्स्ट जहाँ सेशन। पर जहाँ पर जहाँ पर मन है वहाँ मनोवैज्ञानिक है। राइट, और सब राइट, चीजें राइट। मन और से हो मन रही हर हैं। जगह है। तो हम लोग फिर से एक बात, मन की बात मोदी जी करते हैं, एक मन की बात हम लोग फिर से करेंगे अगले सेशन में। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग विद अस। थैंक यू। थैंक थैंक यू यू फॉर सो कॉलिंग। मच। थैंक यू अतुल जी। तो ये थे हमारे साथ गिरजेश चंद्र श्रीवास्तव जी, जिन्होंने बहुत अच्छे शब्दों में, सरल शब्दों में हमें बताया कि नशा है क्या, किनको हम एडिक्ट की कैटेगरी में रख सकते हैं, कैसे हम इनसे दूर बच सकते हैं, कैसे ये बीमार व्यक्ति हैं, हमें इनको सपोर्ट करने की जरूरत है। इसी तरह के अन्य विषयों पर हम आपसे पुनः रूबरू होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।